to join the discussion as well. Thank you. Yeah, before we start the discussion, just a couple of minutes. Can I understand how many MSMEs are here? How many people? Okay, just about reaching double figures. There are many online. There are a lot of Yeah, people and how many are online? 25. So in all, around 35. And can I also understand how many of you are actual owners of your business? So largely owners are here. Okay. Okay. And can I also understand the reason why you've come here? So, first of all, I thanks to give us this platform to discuss, to understand what is the DTR working, everything like that. And definitely we want to understand what is the going on for the MSME in future and how we can get the support from various government schemes to initiate to domestic industry to how to increase that their level. And same time, we also want to highlight which is happening in DGTR difficulties which in the current situation. So मैं सर थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ. मेरा नाम BS रंधावा है. मैं स्पीड ऑफ वर्क कंपोनेंट का रंधावा जी, मतलब मेरा छोटा सा इशू ये था समझने के लिए कि आप लोगों में से कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि बहुत जल्दी DGTR के पास आप लोग आएंगे कि आप ट्रेड रेमेडीज इज़ अ वेरी is an option open to you under very special circumstances. So are you actually feeling that in some time in the future you'll come here, or you just wanted to come and understand what are the options available for you? So that is what I wanted to know. So we will regularly come here and we will try to support. Sir, actually there were our pain points. Since last 6 months, we have been talking about transformer industry. We belong to transformer industry. Exactly जब पिछले 3 दिन पहले हमारे पास एक खबर आई कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो we were surprised कि लगता है कि कहीं हमारी बात सुनी गई है, किसी को हमारे बारे में कहीं हम अपनी बात कह सकते हैं, किसी ने हमारा पेन समझा है. तो we have come here क्योंकि वही हमारा पेन डिस्कस हो रहा है कि डाटा कैसे कलेक्ट करें, लोगों को कैसे इकट्ठा करें. परेशानी ये बहुत बड़ी है क्योंकि हम इस साइड पे जो है आप लोग अच्छा, okay, all of you from yes, okay. So my only point is for CTIL and CII is that we could have had a wider audience, and not only in terms of numbers but also in terms of the sectors that they represent. And if you see DGTR, if you look at the figures of DGTR, you can actually get a trend about the sectors which generally require this kind of a support, and with the industries which actually suffer from certain unfair trade practices. So if CII could also help us in making it more into focus, it would help us a lot. And also I would have preferred if the number of MSMEs were more than the other participants. It seems to be the other way around over here. I think the number of experts are maybe more than the MSMEs. So we have to create the confidence and. So this is one of the confidence building measures, So a lot of preparation goes into this. CTIL has been working on this for some time now. They work out a schedule, they work out a program, they get in touch with lot of experts, and lot of experts then also take out time from their schedule. From my side also I can tell Mr. Gupta is here. So
especially for this program, we postponed our hearing that was scheduled today, and now we'll go back. I would have, expected much more enthusiasm, much more interest on the part of MSME, and that is where I think our associations need to come in and work more harder and ensure more participation. It should not be like that whenever there is a need, only then they start, there's a tendency when you are need something, only then you will go and approach the government, and then you will, say, or the authorities, and then say that we've never been told about this, we never knew how to do this, it's a challenge for us. If you don't start participating in this, it will remain a challenge for you. Okay, so that is all. But I'm very happy some of you came, some of you are actually also, might be looking at these in future, these kind of remedies. I hope the situation doesn't come to that point, but I would have been much more happier had there been more active involvement of MSMEs. So with these, I think we can start with our open house. Yeah, so because that was specially for MSMEs only. Yeah, but then MSMEs, now numbers are huge. You are like, I think 30% of the GDP, 50% of the exports roughly for India. So, and of all the industries that suffer from these kind of practices of other overseas companies, I think MSME suffers the most. The capacity for MSMEs to absorb those kind of shock is more limited as compared to the bigger companies. So that is why the focus of CTIL and CIA was on MSME. Anyway, please. So I want to start with my company. So 2008 I have started my journey with this industry. I would understand the pain of the transformer industry. So we start one unique model which is not available in the world. And I am proudly said that at least with our model, 10,000 to 15,000 families employment will be generated. And 25 of the numbers, जो छोटे यूनिट थे जो जॉब करते थे, वो आज 40 करोड़ की example is Mr. Anil. They are coming from GT Electronics. They were working in one MSME company. Now इन्होंने अपनी मेहनत भी की है, लेकिन एक बहुत बड़ा पार्ट है जो शॉर्ट फेराइट का, जो ट्रांसफार्मर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको किस तरीके से इंपोर्ट कम करके, इंपोर्ट से डिपेंडेंसी कम करके यहाँ कैसे शुरू किया जाए, उसको लिए हमने काम किया. And last, there is a one domestic industry has हम लोगों को चैलेंज दे दिया. बिकॉज मेरा जो प्रोडक्ट है वो एक इंपोर्ट करके हम लोग उसको वैल्यू एडिशन देने के बाद फिर हम लोग उसको मार्केट में करते हैं. एंड आई विल आल्सो बी विक्टिम फॉर दैट पर्टिकुलरली इंपोर्ट ड्यूटी. उससे क्या हुआ, जो अभी गुप्ता जी ने बताया, 90% जो हम लोगों का इंपोर्ट था, डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो 30% आ गई, अब 30% से भी 20% पे आ गई. बिकॉज जो कंट्रीब्यूट है शॉर्ट फेराइट का वो ऑलमोस्ट 50%, 40 से 50% ऑफ द टोटल बियॉन्ड कॉस्ट. अगर उसको 35% अगर हम उसमें ऐड कर देंगे तो हमारी कॉम्पिटेंस विद द इम्पोर्ट ख़त्म हो जाएगी. अब ट्रांसफ़र इम्पोर्ट होना शुरू हो गया. एंड दिस इज़ द वेरी बिग चैलेंज फॉर अस विच वी हैव टू एड्रेस. अगर हम इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं. और नॉट ओनली दैट, कुछ इस तरीके की जो मिस्टेक्स हैं, जैसे मैंने आपको एक रिकमेंडेशन भी दिया है कि एक जो पीयूसी से नहीं है प्रोडक्ट, उसको गलती से जीओएफ ने उसके ऊपर एक्सक्लूड नहीं किया, लेकिन वो अभी तक रेक्टिफायर नहीं हुआ. उससे क्या हमारा कस्टम में प्रॉब्लम आती है. 21 दिन का कंटेनर, 21 दिन तक इनका कंटेनर एक वहाँ लगा रहा, कितनी आपकी डैमेज हुई. तो ये ऐसी चीज़ें जो हैं जो हम अपने आप से, गवर्नमेंट अपने आप से कर सकती है, वो हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. और मेन जो हम लोग बता रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्री है, जो ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है. इसमें बहुत लेबर लगती है. तो इसको प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें सुमोटो लेने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग एक इंडस्ट्री बना सकें और यहाँ पर एक काम कर सकें. तो ये मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है. अब आप बताएंगे सर, ये मैन्युफैक्चर है.
सर नमस्कार, मेरा नाम अनिल बंसल है। मैं पहले अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ कुछ। ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में फॉल करती है और चाइना में एक प्रोविंस है गुआंगडोंग, उसमें एक सिटी है जोंगशान और एक उसका सिर्फ छोटा सा टाउन है डोंगफांग। उसमें 5000 यूनिट है और 1 ट्रिलियन की सिर्फ उस टाउन की इस प्रोडक्ट से सेल है, इस प्रोडक्ट और इसके रॉ मटेरियल से। और ये सर सब लोग यूज़ करते हैं लेकिन इसके बारे में इतना सुना नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, हमारी पावर जो 220 वोल्ट आती है उसको कन्वर्ट करके ये सारे काम करती हैं सारे। लाइक आपका मोबाइल 5 वोल्ट से चार्ज होगा तो एक अडॉप्टर लगेगा, उसका एक पार्ट है। आपकी लाइट अगर 5 वोल्ट से चल रही है, आपका अगर फ़ैन है, आपका मिक्सी है, आपका फ्रिज है, आपका कूलर है, हर चीज़ में ये एक पार्ट की तरह यूज़ होता है। लेकिन क्या है कि B2B है तो एक कंज्यूमर ने इसका नाम नहीं सुना होता। एक्चुअली ट्रांसफार्मर से उसके माइंड में पिक्चर बनती है जो 11000 वोल्ट से 220 वोल्ट को कन्वर्ट करता है, बड़ा ट्रांसफार्मर। और मतलब इसके बारे में इतना लोगों को नॉलेज नहीं है। और ये इंडिया में 20 साल पहले कॉटेज इंडस्ट्री की तरह शुरू हुई, 2 लोगों के साथ 5 लोगों के साथ। और उनमें से जो कॉटेज इंडस्ट्री में उस समय शुरू हुए थे वो आज 200-300 MSME बन गए हैं। लेकिन आज 2000 कॉटेज इंडस्ट्री है जो 5 लोग 7 लोग जिनके पास GST भी नहीं है, तो उनको इकट्ठा करना तो लगभग इम्पॉसिबल है। और दूसरा चैलेंज ये है सर, अभी डेटा से रिलेटेड गुप्ता सर ने बताया कि हर साल प्रोडक्ट बदल जाते हैं, उनके नाम बदल जाते हैं। और इंपोर्ट के अंदर कोई लोग kg में ला रहे हैं, कोई पीसेज में ला रहे हैं, कोई पेयर्स में ला रहे हैं, तो उनको कंपाइल करना, उनके साथ प्रॉफिटेबिलिटी बिठाना लगभग इम्पॉसिबल है। उन्होंने एक सजेशन दिया कि हम इसके रॉ मटेरियल बेसिस पे प्रॉफिट, लाइक इसमें सर मेजर पोर्शन लाइक कॉपर है। कॉपर आज LME है इंडस्ट्री में 1000 रुपीज़ kg है। और अगर हम उस पर उसका कन्वर्जन लाइक 20% 30% जो भी हम एग्री करते हैं उसको अगर हम MIP की तरह अप्लाई कर दें, रेफरेंस प्राइस की तरह अप्लाई कर दें, तो भी इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि जो अंडरकट प्राइजेज़ हैं अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से, उसकी वजह से जो इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है, उसका मतलब कैसे भी गवर्नमेंट करती है अप्लाई। अभी जैसे सर ने बताया PCB का सर ने किया, मैं PCB का एग्जांपल लेना चाहता हूँ। अभी हुआ है एक्चुअली जिस इंडस्ट्री को हम सर्व करते हैं उसी को PCB इंडस्ट्री भी सर्व करता है। चाइना ने क्या किया, आपने एक उसके ऊपर 30% ड्यूटी दे दिया। चाइना उस पर 13 वो रॉ मटेरियल चाइना से लेते थे, चाइना उस पर 30% वेवियर देता था, चाइना ने वो 30% वेवियर रिमूव कर दिया। दोबारा आपने जो किया ख़त्म हो गया वो। दूसरा, उनके कुछ यूनिट मलेशिया में शिफ्ट हो गए, कुछ आपको पता है अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय चाइना पे लगाया आपने। आने वाले हैं आपके पास वो कि सर देखो इतना चाइना तो मलेशिया शिफ्ट हो गया, वियतनाम शिफ्ट हो गया, हम 0 ड्यूटी पे काम कर रहे हैं। तो ये सर सब सारी मतलब डेटा से, जैसे मैंने बताया कि इतना चेंजेस है। अगर मैं अपना 3 साल का डेटा लेके बैठता हूँ तो कोई प्रोडक्ट ही सेम नहीं है सर। मैं एक बल्ब 3 साल पहले LED का 90 रुपीज़ का बनता है, आज पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, 5 रुपीज़ का बन रहा है सर 9 वाट का बल्ब। तो उसमें कैसे प्राइसिंग को कैसे आप करोगे 3 सालों को? कोई और पूरा 100% मैं लेके बैठा तो कोई प्रोडक्ट ही सेम ही नहीं है सर। इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोडक्ट ही बदल गई, ICs बदल गई, कैसे उसको कंपैरिजन करोगे? तो अगर आप उसको रॉ मटेरियल बेसिस पे उस पर करते हो आप एक जनरली, तो बहुत आसान होगा कि वहाँ पर कुछ मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ चाइना अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहा है, हमारे बिजनेसमैन भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो अनएथिकल नहीं कर रहा है उसको लॉस हो रहा है। और HSN कोड भी सर इतना ज़्यादा, मतलब हमारे CHA हैं, A में ला रहे हैं, B में ला रहे हैं, C में ला रहे हैं, D में ला रहे हैं, कैसे उसको करोगे? जो उसका HSN कोड नहीं भी है उसमें भी मटेरियल लाया जा रहा है, कोई मतलब कुछ भी किए जा रहा है। नमस्कार सर, हम बेसिकली मिरर इंडस्ट्री से हैं और मेरा नाम वैभव यादव है। पहले तो सर मैं श्री पीयूष गोयल जी और जो आनंद स्वरूप सर जी बैठे हैं, विकास माथुर जी है, श्रीमती रीता महान जी, श्री देवेंद्र सिंह और GS साहू सर, जो हमारे केस में सर मिरर पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगवा दी गई है ऑलरेडी। और वो चीज़ में सर हम तो एक MSMEs थे और छोटे छोटे यूनिट्स थे कि ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे थे, लेकिन चाइना का इंपोर्ट इतना क्वांटिटी में था कि हमारा पूरा कामकाज बंद हुआ था। तो हमारा जो प्रॉब्लम है हमने आनंद स्वरूप जी को बताया, तो सर उन्होंने हमारा प्रॉब्लम समझ के उस पर डिस्कशन करके बिना आवेदन के ही उन्होंने जांच शुरू कर दी। ये मैं सबके सामने बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना बहुत बड़ा सपोर्ट हमें उस टाइम किया था कि बिना
आवेदन के इन्होंने काम चालू कर दिया। और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मैं इसके लिए क्लैप करना चाहता हूँ। तो सर उसमें जल्दी इन्वेस्टिगेशन होकर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी सर लग गई है। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने से हमारी इंडस्ट्री को बहुत मतलब एक लाइफलाइन ही मिल गई। हम काम शुरू किए, 1 महीने तक सर अच्छा काम हुआ, सबको एक उम्मीद जग गई कि कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन सर अभी एंटी डंपिंग होते हुए भी चाइना का वही माल फिर से आना शुरू हो गया है और हमारा प्रोडक्शन फिर अभी ना के बराबर होना शुरू हो गया है। क्योंकि उसमें क्या हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। एक तो HSN कोड बदली करके ला रहे हैं, मिस डिक्लेरेशन करके ला रहे हैं, आपका डिस्क्रिप्शन चेंज कर रहे हैं। जैसे हमारा हमारा जैसे अगर PUC बोले एल्यूमिनियम ग्लास मिरर था तो उसकी जगह उन्होंने सिल्वर मिरर कर दिया है, बैक पेंटेड ग्लास कर दिया है, एसिड वॉश ग्लास कर दिया है, मोरू ग्लास कर दिया है। मतलब इतने है कि और उसका पूरा डेटा अभी भी है कि चाइना से जो मोरू ग्लास की अगर हम बात करते तो 400-500 या 600 टन के आसपास आ रहा, वो आज 3500 टन हो गया है एंटी डंपिंग लगने के बाद। जैसे हम किसी और प्रोडक्ट की बैक पेंटेड ग्लास जैसे पहले 500-700 टन आ रहा था, वो अभी 2-2.5 हज़ार टन के ऊपर चला गया है। मतलब जो मिरर का क्वांटम था वो किसी और नाम से फिर से दोबारा आना शुरू हो गया है। तो सिर्फ वही घुमा फिरा कि हमको अभी वही मोड़ पे आ गए हैं। तो इसके लिए हम आपको अनुरोध करते हैं कि ये ऐसे प्रयास को रोक के हमारे इंडस्ट्री को फिर से आगे जाने के लिए आपकी तरफ से, और ऑलरेडी बहुत सपोर्ट है ही, आपका सहयोग किया है, लेकिन आगे भी थोड़ा इसी तरह सा सपोर्ट हो जाए। दूसरा सर, हम आपको निवेदन करते हैं कि ये चाइना के खिलाफ सरकमवेंशन का मामला दर्ज करके इसमें कुछ एक हमारी MSME इंडस्ट्री को आगे लेने के लिए एक अच्छा सा तो सर आगे भी हमें सही सपोर्ट मिल के हमारी इंडस्ट्री को फिर से एक काम करने का मौका मिले, ये आपको रिक्वेस्ट है सर। सर इतना हम लोगों के इंडस्ट्रीज में मिस डिक्लेरेशन हो रहा है कि जो माल हम लोगों का क्लियर ग्लास जो रद्दी उसकी स्क्रैप आ रहा है केजी पे, वो 10 रुपये किलो आ रहा है और 12 रुपये में मिरर आ रहा है, वो भी सिल्वर मिरर करके ला रहे हैं। सर इतना मिस डिक्लेरेशन है, 1 महीना हम लोगों को दिक्कत नहीं आई थी, बाद में कंटिन्यू हर एक इम्पोर्टर कुछ ना कुछ बहाने से डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम लोग 1 महीना हम लोगों का थोड़ा सा सराव कर पाए ऐसा लग रहा था, वापिस वही 2 साल से हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग बढ़ रहे हैं कि सर सर्कुलेशन चाहिए तो बोलो और डाटा लाओ, सर कहाँ से लाएंगे हम लोग? एक्चुअली 2 साल हम लोगों ने प्रैक्टिस करके सब किया। अब कल हम लोग गए थे TPM में तो बोला ये लगेगा कागज, आपको फिर से ये देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो सर कब तक हम लोग 2 साल हो गए सर हम लोग पीछे पड़े थे, आज फिर से मांग रहे। वो भी उस टाइम पे भी डेटा हम लोगों के पास कुछ नहीं था, तो उनके एक सपोर्ट किया TPM ने हम लोगों को, वहाँ आके हम लोगों को कंप्यूटर पे अकाउंट के साथ बिठा दिया। एक्चुअली हम लोगों को अकाउंटेंट कैसे होता है कि महीने में हम उसको सेल का बिल दे दिया, परचेज के बिल दे दिए, वो अपने आप सब सेट कर लेते। प्रोडक्शन क्या है ये बोलते PUC दो, ये करो, ये सर नहीं हम लोगों के पास पॉसिबल। हम लोग खुद ही एक ही काम कर रहे हैं, मशीन मेंटेन भी हम लोगों को करना है, परचेज भी हम लोगों को करना है, सेल भी हम लोगों को करना है, सुबह शटर हम लोगों को खोलना है, ये चीज़ होती है। आप बोल रहे हैं कि कल हम लोगों ने बताया तो इसके अंदर ये होगा, MIP करेंगे, ये आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। सर कहाँ से हम लोग लाएंगे? लास्ट टाइम भी किया था तो इन लोग को स्टाफ आके हम लोगों के अकाउंटेंट्स का बिठाया था। सर प्रॉब्लम रियल पहले फिजिकल थी, अब मेंटली भी हो रही है, फाइनेंशियल भी हो रही है। थोड़ा सा सर आप लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन सर पीछे से सर वो कुछ नहीं हुआ हम लोगों के साथ। सर नमस्कार, मैं संजीव बंसल हूँ और मैं फर्नीचर फिटिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं पहली बार डैश पे जितने भी हमारे अधिकारी बैठे हैं सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं सर एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और उससे पहले मैं एक बार AK गुप्ता जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं और कुछ कहने के लायक हैं। हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से हैं, MSME से भी, मतलब जिसमें जो पहले के 2 शब्द हैं मैं वहाँ से हूँ। सर हमारा ये जर्नी मैन्युफैक्चरिंग की 2009 में स्टार्ट हुई और इसको मैंने शुरू किया था इस इंडस्ट्री को। 2015 के बाद इसमें थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और 2019 में कोरोना आने के बाद लगभग 2 साल तक इस इंडस्ट्री में इतना काम हुआ कि
हम लोगों की जितनी कैपेसिटीज थी वो सब कम पड़ गई। उसके बाद सर चाइना का जैसे ही माल आना चालू हुआ और उसके बाद में जो सब्सिडीज़ वगैरह चालू हुई, हमारी 6 महीने में ऐसी हालत हो गई, तब हमारी तकरीबन 25 से 30 इंडस्ट्री थी जो बंद होने की कगार पे थी। मैं DGTR और ख़ास तौर पे हमारे पीयूष गोयल जी और प्रधानमंत्री जी के जो आगे विजन में जो काम चल रहा है, आई एम रियली थैंकफुल टू द मंत्रालय और मैं DGTR के सारे अधिकारियों का, और ख़ास तौर पे मैं अनंत स्वरूप जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने DGTR फाउंडेशन डे के ऊपर हमें एक कमिटमेंट किया और सुओ मोटो बेसिस पे इन्होंने हमारा केस को लिया और उसको करके दिखाया। आज सर तकरीबन हम लोग 60 लोग हो गए हैं और तकरीबन मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि इसके माध्यम से हमारी सर सालाना कंजम्पशन 50,000 टन स्टील की हो गई है, जो 5,000 टन थी। 300 करोड़ की वैल्यू सर हमने स्टील इंडस्ट्री को ऐड करके दिया है। उसके अलावा सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिकल्स में मैं समझता हूं, जो मेरा एक आइडिया है, तकरीबन 30 करोड़ के करीबन कीमत का इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिकल इंडिया में इस्तेमाल होना चालू हुआ। इतना ही लगभग प्लास्टिक पार्ट्स की कंजम्पशन हुई। और इसके अलावा सर आप समझ सकते हैं किसी भी आइटम को पैक करने के लिए कोरोगेटेड बॉक्सेस, पॉलीथीन और बहुत सारी अलाइड चीज़ें हैं, पैकिंग टेप हैं छोटी छोटी चीज़ें सर, बट इन सब का कंजम्पशन भी उसी अनुपात में बढ़ा। ट्रांसपोर्टेशन, पहले माल आने का ट्रांसपोर्टेशन भी अब ये हो गया, फिर बाद में भेजने का ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड हो गया। और एक छोटी सी बात ये कहूँगा सर, जो हमारी फैक्ट्री के बाहर एक चाय का जो ठेला लगाता है उसको भी खूब काम मिल गया सर। एक टाइम पे वो ये पूछता था, बाबूजी फैक्ट्री कब चलेगी? अब वो उसको जब देखो वो चाय की केतली लेके फैक्ट्री में घूम रहा होता है कि सर वो वर्कर थक गए होंगे, ज़रा चाय पिला दें उनको। सर ये की बात रही, अभी मेरे प्रीवियस 2 MSME भाइयों ने एक बात कही है, वो वास्तव में एक बड़ा पेन है HSN कोड। मैं आपके माध्यम से सर एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे HSN कोड में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि एक HSN कोड में 85 आइटम है जिसको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। और वहाँ पर एक आइटम आपने दे दिया तो वो कहीं ना कहीं आपको पता है कि इम्पोर्टर, CHA और हमारे माननीय कस्टम अधिकारी जो काम करते हैं वो सभी को मालूम है कि वो कहाँ पहुँच रहा है। हमारे कस्टम अधिकारी इस बात पे और ख़ास तौर पे वो इसको नहीं समझ रहे हैं कि वो भी देश के एक सैनिक हैं और उनको अगर इंडियन इंडस्ट्री को अगर आगे बढ़ाना है तो उनको कहीं ना कहीं एक सैनिक के रूप में काम करना पड़ेगा, ताकि हमारे देश में लो स्टैंडर्ड और सस्ती चीज़ें नहीं आए जिससे हमारा एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट हो रहा है। सर हमारी इंडस्ट्री ने तकरीबन पिछले जब से हमारी एंटी डंपिंग ड्यूटी आई है, 1 साल में सर 5,000 लोगों को रोज़गार हमारे यहाँ पर मिला है। बिसाइड्स कि हमने इंडियन मटेरियल्स का कंजम्पशन को बढ़ावा दिया है। सर यहाँ पर 1-2 चीज़ें छूट रही हैं, मैं सर आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखना चाहूँगा। सर अभी जैसे DGTR सर एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। एंटी डंपिंग लगने के बाद में क्या हुआ सर, मान लिया जैसे पहले पूरा पेन आता था, अभी ये कैप अलग से पैक होकर आ रही है और ये अलग से पैक हो गया। अब उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी ख़त्म हो गई। ये अब माफ़ी चाहूँगा सर, मैं थोड़ा सा एकदम आम भाषा में बात कर रहा हूँ, पर मेरी तो सर ये बहुत सारे तरीके ऐसे शुरू हो गए हैं कि सर जिनसे अब वापस से हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि ग्लास इंडस्ट्री ने बात किया वही सेम चीज़ चालू हो गया। हमें कहीं ना कहीं इसके ऊपर सर एक्शन लेना पड़ेगा कि हम जब भी किसी भी आइटम के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएं तो हमें साथ में ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो भी पार्ट CKD के रूप में आ रहे हैं या अलग अलग हो करके आ रहे हैं उसको भी एंटी डंपिंग ड्यूटी की नोटिफिकेशन में शामिल हमें करना चाहिए। ये मेरा एक सुझाव है इंडस्ट्री की तरफ से, अगर आपको ये ठीक लगे तो इसको आप ज़रूर स्वीकार करेंगे। सर इसके अलावा मेरा एक सुझाव और है, मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर भारत सरकार या जो भी मंत्रालय इसके अंदर आता है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जिन्होंने उस प्रोडक्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी
के लिए इनिशिएट किया था, उनका कम से कम एक मेंबर को कस्टम ड्यूटी बोर्ड में या कहीं भी एक ऑफ साइट वो उसको एक शामिल करना चाहिए कि अगर उसको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो वो उसको एक बोर्ड में उसको भेज दे और उसको हम क्लियर कर सके कि यार ये आइटम ग्लास का है या टेलीस्कोपिक का है या पीसीबी का पार्ट है या किसी चीज़ का पार्ट है। इससे सर जो ये थोड़ी बहुत जो चोरी हो रही है वो कहीं ना कहीं रुकने की उसकी बहुत संभावना मेरे हिसाब से बननी चाहिए। ये कुछ सुझाव हैं हमारी इंडस्ट्री की तरफ से। और मैं यहाँ पर आपको एक बात और कहना चाहूँगा सर, हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल इंडिया के लिए नई थी, वर्कर्स बिल्कुल अनट्रेंड थे सर। हम चाहते हैं कि इस माध्यम से कहीं ना कहीं एक स्किल इंडिया भी अपने आप में हो रहा है। बट जो हमारे लोग यहाँ पर काम सीख रहे हैं उन लोगों को काम हम लोग सिखा रहे हैं, बट उन लोगों के पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। ऐसे लोगों का जो भी मंत्रालय, श्रम मंत्रालय इसको देखता है, कुछ देखता है, जैसे ऑन जॉब ट्रेनिंग हो गया तो उसको हम लोग ऑन जॉब एक सर्टिफिकेट हम उसको दे सकते हैं जो इंडस्ट्री इंडिया में पहले नहीं थी। तो ये भी एक हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना जरूर पूरा करेगी, चाहे उसमें आदमी वो भले ही 50 हो या 100 हो। और एक चीज़ और सर, अगर हम इसमें इंपोर्ट की क्लियरेंस के समय पे सर अगर हम कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर लें और 100% सैंपल्स को, जो भी सैंपल्स वो कस्टम के अधिकारी हमारे निकालते हैं, उसको कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर को जोड़ दें अगर हम, तो मैं ये समझता हूँ कि उससे भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ना चाहिए कि जो HSN कोड की हेरा फेरी हो रही है तो वो फ़ोटो कहीं ना कहीं बता देगी कि HSN कोड इसमें फॉल करता है। एक बार सर फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए और आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुप्ता जी, एक बार फिर। मैं एक सेकंड, मैं बीच में बोल रहा हूँ, बट आप लोगों ने जो सुझाव दिए काफ़ी सारे DGTR के परव्यू से बाहर के भी हैं, ठीक है, पर क्योंकि हम कॉमर्स में भी काम करते हैं तो उसको सुझाव को भी हमने नोट कर लिया है। कुछ आप लोगों ने कॉमर्स मिनिस्ट्री के बाहर के भी सुझाव दिए हैं, पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप लोग की बात सही है, आप लोग छोटे यूनिट्स हैं, डेटा का आपको चैलेंजेस आता है, लेकिन जो एक सेशन अभी डेटा का लिया उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोला था, वो है कि आप लोगों को अपनी एसोसिएशंस बनानी चाहिए। ठीक है, देखो इस पूरे सिस्टम के अंदर 3-4 स्टेक होल्डर्स हैं। एक DGTR हो गया, सबसे पहले अगर शुरू करें तो इंडस्ट्री से, इंडिविजुअल यूनिट्स हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद आपके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं इस चीज़ को बनाने में, तीसरा DGTR और उसके ऑफिसर्स वो आपके डिसीजन के साथ साथ वो भी आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए जहाँ पे आनंद सर ने स्वयं ही सो मोटो स्टार्ट करके ये प्रोसीडिंग्स ली और उसका रिजल्ट भी आप लोगों ने बताया कि आज की तारीख में कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री हो गई और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। पर एक बीच की कड़ी और है जो एसोसिएशन है। जितना आप एसोसिएशंस को बनाओगे आप लोगों को उतनी मदद मिलेगी, ठीक है। तो डाटा आप ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल यूनिट, सारी इंडस्ट्री का डाटा जहाँ पे अगर छोटी छोटी यूनिट्स हैं, ठीक है, जैसे फ्रैगमेंटेड यूनिट्स की बात हो रही थी, वहाँ पे नहीं कर पाएगी। तो आपको कोशिश करके यू शुड ट्राई एंड मेक एसोसिएशंस, ठीक है। कोई भी कोई काम शुरू करता है तो वो इस क्राइटेरिया से नहीं करता है कि कभी मेरे को DGTR के भी ऑफिस जाना पड़ेगा, ठीक है, तो उस हिसाब से तैयारी नहीं करता है। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट्स को उसी हिसाब से मेंटेन, आई नो खर्चा आएगा थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि आज की तारीख में जब व्हेन द वर्ल्ड इज सो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन के अंदर, और सम ऑफ द इकोनॉमीज हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस एट सच लो कॉस्ट एंड सेल ऑल्सो एट वेरी लो कॉस्ट ओवर हेयर, और प्रैक्टिसेस आप लोगों ने भी देखी हैं किस तरीके की चल रही हैं। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर हम अपना डेटा को अलाइन करते हैं, केवल DGTR के पर्पस से नहीं करें, इवन अदरवाइज फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव ये एक अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। तो एसोसिएशंस को भी और आप लोगों को भी अपने दूसरे साथियों को बोलना चाहिए कि अकाउंटिंग का सिस्टम बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, लेकिन एक बार अगर आप शुरू करेंगे थोड़ा सा खर्चा ज़रूर आएगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपको केवल DGTR ट्रेड रेमेडीज़ के लिए नहीं, इवन अदरवाइज भी आप लोगों को मदद करेगा।
तो मेरे 2 छोटे छोटे ये सुझाव थे। बाकी मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि DGTR की तरफ से आप लोगों को हमने वहाँ पे एक सेल भी बनाया है जो आप लोगों की मदद करता है। अगर आप लोगों को और चाहिए हेल्प, वी विल स्ट्रेंथन दैट सेल, ठीक है। हम हमारे MSMEs को जिस तरीके की मदद चाहिए उसके लिए हम अपने सेल को बिल्कुल पूरा एक्सपैंड करने के लिए, उनको और एक्सपर्ट करने के लिए, उनकी भी खुद की कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए भी तैयार है, ठीक है। आपको जो जो चीज़ें लगती है आप वो हमारे को बताइए। आप लोग वहाँ पे आते भी हैं, आप लोग हमारी टीम से मिलते भी हैं, इनसे टच में भी हैं, ठीक है। किसी चीज़ के अंदर आपको लगता है कि हमारे प्रोसीजर को भी एक बार देख लें, पर एक बात ध्यान में रखिए कि ये एक WTO कमिटमेंट के हिसाब से बना हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम शायद चेंज नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन अगर सारे स्टेक होल्डर्स जो मैंने 4 बताए मिलके काम करेंगे तो इस प्रोसेस को हम आप लोगों के लिए थोड़ा और सुविधाजनक बना सकते हैं, आपकी हैंड होल्डिंग भी कर सकते हैं। उसकी के लिए ये आज की ये सेशन भी करा गया था और इसको हम और भी प्लान करेंगे। हमारे DGTR के यहाँ से मेरे को बताया गया कि पहले भी आपके टाइम पे काफ़ी सारे सेशंस हुए थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम और भी प्लान करेंगे। बट आपके सुझाव जो आएंगे, जिस पे हम पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं हम कोशिश करेंगे उसकी। मुझे अभी निकलना है, पर मेरे से ज़्यादा यहाँ पे मेरे लेफ़्ट और राइट पे जो बैठे हैं वो ज़्यादा एक्सपर्ट है। मैं 2 महीने का एक्सपर्ट हूँ, सर 20 साल के एक्सपर्ट हैं कॉमर्स के। ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir, for your insightful remarks on the conversation. So, before you leave, we'll continue the open house discussion for the next 15 to 10 minutes. We'll take more questions as well. Thank you. नमस्ते सर, रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज। सर हमारा विषय, सर मैं मोहित पगारिया मोबाइल कवर एसोसिएशन के बिहाफ पे यहाँ पर आपका एक विषय पे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। MSME मोबाइल कवर उत्पादकों को प्रभावित करने वाली TPU एंटी डंपिंग शुल्क से तत्काल राहत और सुरक्षा का अनुरोध। आदरणीय महोदय, मोबाइल कवर एसोसिएशन की ओर से हम आपका ध्यान घरेलू मोबाइल कवर निर्माण उद्योग की गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से MSME श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण 40 से अधिक छोटे उत्पादक शामिल हैं। हमने पहले चीन से मोबाइल कवर के आयात के विरुद्ध एक एंटी डंपिंग आवेदन दायर किया था। दुर्भाग्य से आवेदन से अपेक्षित राहत नहीं मिली। बिगड़ती परिस्थितियों को देखते हुए हमें इस आशा के साथ एक नया आवेदन दायर किया है कि प्राधिकरण हमारी समस्या पर उचित तत्परता से विचार करेगा। मोबाइल कवर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य कच्चा माल थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन TPU है। सरकार द्वारा TPU पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने से हमारी उत्पादन लागत में लगभग 50 से 60% का भारी वृद्धि हुआ है। वही चीन से आयात मोबाइल कवर भारतीय बाजार में 2 रुपये से 2.5 रुपये प्रति पीस की बेहद कम कीमत पर बिक रहे हैं। इससे घरेलू निर्माताओं को भारी नुकसान हो रहा है। मौजूदा लागत पर हम कच्चे माल की लागत भी नहीं निकाल पा रहे। संचालन जारी रखना या बाज़ार में प्रतिस्पर्धा करना ये तो दूर की बात है। सर जैसे मोबाइल कवर 2 रुपये 2.5 रुपये पे पोर्ट पे क्लियर हो रहा है और हमारे कच्चे माल की कॉस्टिंग ही 10 रुपये है। 10 से 12 रुपये हमारा बेसिक रॉ मटेरियल का कॉस्ट है और मोबाइल कवर फिनिश चाइना से 2 से 2.5 रुपये में आ रहा है। उससे सर हम मार्केट में बिल्कुल अनकॉम्पिटिटिव बन गए और अक्टूबर में जो हमारा बेसिक रॉ मटेरियल है TPU उस पर एंटी डंपिंग लगभग 100% जैसा आ चुका है। जो माल पहले 1.6 USD में आता था उस पर 1.58 USD जैसा एंटी डंपिंग लग चुका है। ऑलमोस्ट उस एंटी डंपिंग का कॉस्ट ही हम देखें तो 4 से 5 रुपया हो रहा है। रॉ मटेरियल का कॉस्ट अलग, एंटी डंपिंग का कॉस्ट अलग। बेसिक रॉ मटेरियल का कॉस्ट सर 11 से 12 रुपया हो रहा है और मोबाइल कवर फिनिश पूरा चाइना से 2.5 रुपये में आ रहा है। तो लास्ट में भी हमने केस फाइल करा था बट किसी भी कारणवश वो नहीं हो पाया। पर एक सर विनम्र निवेदन है आपसे कि इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करें और इस केस को थोड़ा आगे बढ़ाएं, क्योंकि 2.5 रुपये में मोबाइल कवर आ रहा है और 12 रुपये रॉ मटेरियल का कॉस्ट है। इसमें हमने कोई बिजली खर्च नहीं जोड़ा है या कोई भी दूसरे फैक्ट्री अदर एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं जोड़ा है। तो कैसे हम सर्वाइव करेंगे और काफ़ी सर्वाइवल में हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर इंडस्ट्री चलाने में। तो ये मैटर सर मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और सर काफ़ी हम 8 महीने से लगे हुए इस प्रोसेस में और
डेंजर की तरफ जाती जा रही है इंडस्ट्री। मतलब छोटे मैन्युफैक्चरर धीरे धीरे फैक्ट्री बंद करना चालू कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करें। आपका जो रिवाइज्ड एप्लीकेशन आया है, जो पहले जो भी चैलेंजेस थे उसके बाद अब आपने दोबारा एप्लीकेशन दिया है, वो टीम में तो एलोकेट हो गया है, जी है जी। ना? तो वो लोग देख रहे हैं एंड होपफुली जो आपकी कंसर्न्स हैं वो उसमें एड्रेस कर लेंगे, देखते हैं सर। ठीक है? फिर भी सर कैसे क्या, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा सर इफेक्ट हो रही है सारी इंडस्ट्रीज़, तो जी। कुछ सर अगर फास्ट हो सकता हो ये प्रोसेस थोड़ा। पिछली बार भी शायद डाटा चैलेंजेस आए थे उसके जी 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 सर, मतलब सर छोटा सेक्टर है और थोड़ा सा डेटा का वही लास्ट टाइम प्रॉब्लम रहा था, और इस नहीं, टाइम सुमोटो नहीं सर, अब तो इनफैक्ट फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री से आ गया, एप्लीकेशन आ गया है एंड दैट हैज़ बीन नाउ कंसिडर्ड, तो उसको विल ट्राई टू एक्सपीडाइट। थैंक यू। ओके, सतीश जी हैं उसमें साथ में। हाइब्रिड मोड में सर ऐसे जैसे हमें देवेंद्र जी हैं हमारे साथ में, वीरेंद्र जी, सॉरी बगिया जी, हम लोग पीछे जब एंटी डंपिंग ड्यूटी का केस फाइल कर रहे थे, ये एक पेन है मेरे अंदर वास्तव में, जो ईमानदार जो इम्पोर्टर है, जैसे अभी बंसल जी भी ये बात कह रहे थे, और कि वास्तव में एक एंटी डंपिंग ड्यूटी का पेनल्टी जो ईमानदार इम्पोर्टर है वो उनके ऊपर भी पड़ता है। तो क्या ऐसा कोई प्रोसीजर हमारे यहाँ पर है कि जो लोग ठीक से दाम पर चीज लेके आ रहे हैं उनको एग्जम्प्ट किया जा सके? एक प्रोसीजर है जिसको रेफरेंस प्राइस ऑफ ड्यूटी कहते हैं, कि इस मान लीजिए 100 रुपये की आपकी NIP कैलकुलेट हुई है, तो 100 रुपये के अगर नीचे आएगा सामान तो ड्यूटी लगेगी, 100 के ऊपर आएगा ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि जो डंपिंग नहीं कर रहा है उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। आपके शब्दों में जो जेन्यून है, जो ईमानदारी से बेच रहा है, उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। इसका फ्लिप साइड क्या है कि स्पेशली चाइना से अंडर इन्वॉइसिंग बहुत होती है या ओवर इन्वॉइसिंग बहुत होती है। तो अगर 100 रुपये लगाएगा तो वो पेपर पे 100 रुपये के ऊपर दिखाएगा और बाकी पैसा किसी और चीज़ में एडजस्ट कर देगा। एक उसका ये नुकसान है। दूसरा रेफरेंस प्राइस का नुकसान है, जहाँ रॉ मटेरियल का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो ये ड्यूटी तो 5 साल के लिए फ़िक्स है, लेकिन आपकी रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गई तो ड्यूटी फिर इनइफेक्टिव हो जाती है। तो उसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है, लेकिन नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं। इसीलिए DGTR ज़्यादातर फिक्स फॉर्म ऑफ ड्यूटी को रेकमेंड करता है, रेफरेंस प्राइस को कम करता है। बट दोनों एक साथ साथ कैसे हो सकती हैं? नहीं, इसमें तो फिक्स फॉर्म ऑफ ड्यूटी है, एड वैलोरम नहीं है ना। इसमें ये नहीं होता है कि 10% या 5%, इसमें फिक्स्ड होता है $20 पर kg। तो वो चाहे 100 रुपये का लाए या 50 रुपये का लाए या 25 रुपये का लाए, उस पर लगेगी ही $20 पर kg। मेरा कहने का मतलब था 35% तो मान लो आपने चार्ज किया, वो तो चार्ज हो ही रहा है, लेकिन उससे कम प्राइस पर भी नहीं ला सकता वो, उस रेफरेंस प्राइस से कम पर भी नहीं ला सकता वो। नहीं, दोनों मिक्स इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ड्यूटी पे, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी तो आप लगाओगे ना, तो ड्यूटी आपने कैलकुलेट कर ली, मान लीजिए $20 प्रति kg आपने कैलकुलेट करी, तो $20 प्रति kg उस पर लग रही है ड्यूटी। तो ड्यूटी, एक चीज़ और समझनी चाहिए कि ये जो एंटी डंपिंग है ये कस्टम्स ड्यूटी नहीं है, ये डंपिंग ड्यूटी है। तो जितनी डंपिंग करेगा उतनी ही ड्यूटी आप लगा सकते हो। आप इसको यूज़ कर रहे हो कस्टम्स ड्यूटी के हिसाब से कि तुम कस्टम ड्यूटी भी लगा दो, वो अलग प्रक्रिया है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती है। सर मैं ऐड करना चाहूँगा सर, बेसिकली सर आप जो बात कर रहे हैं मैं समझा आपकी बात को। जो हाइब्रिड सर आपने बोला, आई थिंक द टू डिफरेंट बकेट्स। एक बकेट है जो पॉलिसी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, MIP फॉर एग्जांपल लगाना, कि आप इस मिनिमम प्राइस से नीचे मत आने चाहिए प्रोडक्ट को, और एक दूसरा है एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो जो हमारा WTO लॉ बोलता है और जो हमारे लीगल प्रोविजंस हैं उसमें आप एक मिनिमम प्राइस इन्फोर्स करना, वो एक पॉलिसी मेजर है। यू कांट, आप उसको एंटी डंपिंग में नहीं ला सकते, बिकॉज एंटी डंपिंग इज एन एक्सरसाइज टू बी डन इन अकॉर्डिंग टू WTO लॉ, और वो बोलता है जितना प्रोड्यूसर ने डंप किया उतना ड्यूटी लगेगी। देन देयरफॉर यू कांट फिक्स अ मिनिमम प्राइस इन एंटी डंपिंग मेजर्स। आप पॉलिसी मेजर में जा सकते हैं, MIP में जा सकते हैं, वो डिफरेंट चीज़ है। दोनों का हाइब्रिड करना मेरे हिसाब से लीगली पॉसिबल नहीं है सर। और वो उसके लिए कहाँ जाना होता है सर?
सर फिर एक आपने वो था सरकमवेंशन का, आपने बताया था पेन के 2 कंपोनेंट में आ रहा है, तो उसके लिए तो एंटी सरकमवेंशन की ड्यूटी की प्रक्रिया है और वो उसके लिए भी एक एप्लीकेशन दायर की जा सकती है। अगर प्रोडक्ट किसी डिफरेंट फॉर्म में आने लगा, सीकेटी फॉर्म में आने लगा या एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने के बाद में एक पैटर्न चेंज हो जाता है कि उस फॉर्म में पहले तो इंपोर्ट होते नहीं थे, ड्यूटी लगने के बाद वो शुरू हो गया है, तो वो चाहे बाहर सीकेटी में आ रहा है या इंडिया में किसी जगह असेंबल हो रहा है, एंड ओनली विद ए व्यू टू इवेट द ड्यूटी, सर्कमवेंट द ड्यूटी, तो उसमें डीजीटीआर के पास अधिकार है। एंटी सर्कमवेंशन की ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं, वो भी इन्वोक किया जा सकता है, बट इंडस्ट्री को अगेन विजिलेंट होना होगा। आप ही पिटीशन डालेंगे, उसको प्रूव करेंगे। और जहाँ पर ड्यूटी एब्जॉर्प्शन है उसके ऊपर भी लॉ आ चुका है डीजीटीआर में कि अगर आप ड्यूटी एब्जॉर्ब हो रही है, उसके ड्यूटी लगने के बाद में यदि उसने एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर ने मिलके प्राइस को ऐसे एडजस्ट कर दिया, मान लीजिए एड वैलोरम ड्यूटी लगी है, 5% की ड्यूटी लगी, उन्होंने प्राइस को ऐसे एडजस्ट कर दिया कि 5% ड्यूटी देके वो खप रहा है माल और डंपिंग बंद ही नहीं रही आए जा रहा है, तो एंटी एब्जॉर्प्शन का भी प्रावधान सरकार ने ला दिया है। मतलब उसको भी काउंटर कर सकते हैं। केस किया भी है। तो 3 तरह का, जैसे मुकेश सर बोल रहे हैं, 3 तरह से सर्कमवेंशन हो सकता है। पहला सर्कमवेंशन होता है जिसको प्रोडक्ट सर्कमवेंशन कहते हैं, जैसा आपने एग्जांपल दिया कि पेन के ऊपर ड्यूटी लगी हुई है, अब पेन अलग आ रहा है, ढक्कन अलग आ रहा है, तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट सर्कमवेंशन, कि उस प्रोडक्ट को तोड़ के ला रहे हैं। दूसरा होता है कंट्री सर्कमवेंशन, चाइना के ऊपर ड्यूटी लगी है, कोरिया से सामान आ रहा है, चाइना में लेकिन बन रहा है। और तीसरा होता है एक्सपोर्टर सर्कमवेंशन, कि जिस एक्सपोर्टर को 0 ड्यूटी मिली है या कम ड्यूटी मिली है, सब बाकी वहाँ के एक्सपोर्टर उसके थ्रू भेज रहे हैं। तो इसके ऊपर भी डीजीटीआर में प्रावधान है कि एंटी सर्कमवेंशन के ऊपर फास्ट ट्रैक रेमेडी है, ताकि वो ड्यूटी दूसरों के ऊपर भी, पार्ट के ऊपर एक्सटेंड हो जाए या दूसरी कंट्री के ऊपर एक्सटेंड हो जाए या और उस एक्सपोर्टर के ऊपर एक्सटेंड हो जाए। लेकिन जैसा मुकेश सर बोल रहे हैं, हमको विजिलेंट रहने की आवश्यकता है। उससे पहले की आवश्यकता है जब हम एप्लीकेशन फाइल करें, उस समय जब हम प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करें, उस समय हमको पहले भी सोच लेना चाहिए कि प्रोडक्ट को हम सही डिफ़ाइन करें, सर्कमवेंट तो नहीं हो सकता है फ्यूचर में। तो अगर हमने उस समय ही डिफ़ाइन कर लिया तो ये बाद की प्रक्रिया से आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। अभी सिद्धार्थ सर कह रहे थे कि फैक्ट्री कोई सोच समझ के अकाउंटिंग इसलिए तो नहीं लगाता कि डीजीटीआर में जाना पड़ेगा। नहीं, पर इस समय तो आप डीजीटीआर में आ चुके हैं ऑलरेडी, आप आ चुके हैं, अब आप प्रोडक्ट को डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो जब डिफ़ाइन कर रहे हैं उस समय थोड़ा सा ध्यान लगा के डिफ़ाइन करिए कि सर्कमवेंशन तो नहीं हो सकता है। सर हो सकता है हम फाइल कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम साथ में इंक्लूडिंग करके चले। आपको एप्लीकेशन फाइल करते समय उस समय सोच लेना चाहिए कि भाई इसका अगर हम, जैसा एग्जाम्पल है गुप्ता जी बताएंगे, केस था वैक्यूम फ्लास्क का, कि वैक्यूम फ्लास्क सिर्फ डिफ़ाइन किया था। बाद में ध्यान आया कि सिर्फ वैक्यूम फ्लास्क अगर हम कर देंगे तो ढक्कन अलग आ जाएगा, बॉडी अलग आ जाएगी, बेस अलग आ जाएगा, हो जाएगा, फिर उसका क्या करेंगे, सीकेडी हो जाएगी। तो गुप्ता जी उसको जुड़वाना चाह रहे थे और मैं उसको जोड़ना नहीं चाह रहा था। बहुत बहस के बाद फाइनली हम लोगों ने जोड़ दिया। लेकिन ये अगर हम प्रोएक्टिव हैं, पहले से सोच सकते हैं, तब आपको लाभ है, वरना वही हाल होगा कि जो अभी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बता रही है कि चैनल ड्रॉअर पे हमने लगा लिया, अब लेकिन जी उसको कुछ, या मिरर वाले बता रहे हैं कि उसमें क्या किया था, एल्युमिनियम बेस के ऊपर हमने मिरर किया था, क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा आता है, वो मास प्रोडक्शन में नहीं आता है। अब वो सबको सिल्वर डिक्लेयर करके ला रहा है, तो बहुत ज़्यादा भी आप व्यापक नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सिल्वर आप बनाते नहीं हैं, तो दूसरी साइड बोलेगी जब बनाते ही नहीं हैं तो आप इसको जोड़ क्यों रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं कि ये सर्कमवेंट हो सकता है, उस समय डिफाइन कर लेना चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में कम कष्ट हो। तो जो भी पॉसिबिलिटीज है एट अ टाइम ऑफ एप्लीकेशन हमें साथ में इंक्लूडिंग करनी ही। हाँ, नहीं करनी नहीं है, आपको सोच लेना चाहिए कि मतलब अब शादी हो रही है तो डिवोर्स की तैयारी तो नहीं करके रखता है आदमी, पर लेकिन क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं इसके बारे में तो सोच लेना चाहिए। फिर हमारा केस थोड़ा सा जल्दी इनिशिएट करवाइए, बहुत रिक्वेस्ट है सर, बहुत रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम बहुत ही डिफ़िकल्ट पोजीशन में आ चुके हैं। बिकॉज 8 महीने से तो हम वेटिंग में हैं,
एक बार कैंसिल हो गई, अब वापस एप्लीकेशन हुई है, उस पर भी सबसे डेटा कलेक्ट किया, अब सब प्रेशर कर रहे हैं कि भाई कब होगा कब होगा कब होगा। ऑलरेडी जितने भी दूसरे भी स्टेक होल्डर्स है वो सब 8-10 फैक्ट्री तो बंद हो चुकी है सर इसमें। तो अब ज़्यादा टाइम जाएगा तो सर हमारे लिए वो है कि हम सबको बंद करनी पड़ेगी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इंपोर्ट सर ऐसा हो रहा है जिसकी कोई मतलब लिमिट ही नहीं है, ना यूनिट में डेफिनेशन है ना मिस डिक्लेरेशन में है, कोई भी जगह पे कुछ नहीं है। मतलब 2 रुपये पे कवर आए, मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सर यहाँ बन सके या उसकी वैल्यू आ सके ऐसी। तो सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है सर इसको थोड़ा सा अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, पर ये बताएंगे। Yes, sir. Before we continue with the audience questions, we have certain participants who are present virtually. We'll take 1 or 2 questions from our online participants as well. Mr. Harminder Singh. Hello. Okay. In the meantime, we can take one more question from the. He's here. He's here. Hello. Yeah. Good afternoon to all. We are on behalf of Plastics Manufacturing Association PMMI. We would like to thankful government for accepting our request of anti-dumping on Chinese product. We all MSME manufacturers were running at the 50 to 60% of our capacity, and last month only on 28th of June, the anti-dumping on plastic processing machines have been implemented. We hope that this step of the government will help us recover, and we thank once again for the support to Government of India to save our industry. Thank you once again. Hello. जी मेरा नाम रमाकांत हरलाल का है। मैं बॉम्बे से आया हूँ, फ्रेगरेंस फ्लेवर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और हम लोग फ्रेगरेंस फ्लेवर बनाते हैं। मैं एक छोटा सा बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ। जो हमारा मिंट ऑयल है, मेंथा ऑयल, यहाँ पर यूपी में काफ़ी बड़ी तादाद में होता है, और पहले आज से 50 साल पहले मैं जुड़ा था इससे। तभी रिचर्डसन हिंदुस्तान करके एक कंपनी आई थी जैसे जो विक्स बनाती थी, और पहले सारा इंपोर्ट होता था। यहाँ पे बिलासपुर में फैक्ट्री लगाई, बाद में ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होता गया। यहाँ के करीब करीब 10 लाख किसान यूपी, पंजाब, बिहार इत्यादि में चारों तरफ फैले हुए हैं, और वो सारा मिंट का उत्पादन ये 2 क्रॉप के बीच में करते हैं, चावल और गेहूं के बीच में। और इसमें काफ़ी बड़ा योगदान रहा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो CSIR विभाग है, उसने बहुत अच्छी प्रजातियाँ डेवलप कर ली। मैं उसमें बोर्ड में हूँ। एरोमा मिशन, फ्लोरिकल्चर मिशन इत्यादि जो मोदी जी ने लॉन्च किया। अब परिस्थिति ऐसी आ रही है जैसा आप सब ने बताया कि चाइना की बहुत बड़ी समस्या है। तो पहले ये तेल जापान में होता था, शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर ब्राज़ील गया, ब्राज़ील से चाइना आया,
लेकिन चाइना से जब से इंडिया में आया है तब से 45 साल से मैं लगातार इससे कनेक्टेड हूँ। ये इंडिया से जा नहीं पाया कहीं पे, बल्कि चाइना आज 20,000 टन इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से नेचुरल मेंथॉल। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा सोलार की वजह से या अन्य जो ईवी की वजह से क्रूड ऑयल का भाव आगे भविष्य अंधकारमय है। उसको देखते हुए चाइना की जितनी भी कंपनियां हैं वो क्रूड ऑयल से आइसोप्रीन केमिस्ट्री के थ्रू सिंथेटिक मेंथॉल बनाने लग गई है और बड़े बड़े प्लांट आ गए। सबसे पहले बीएसएफ जो लुडविग्सहाफेन में था वहाँ से शिफ्ट करके उसने चाइना में प्लांट लगाया। एक प्लांट लगता है चाइना में 10 प्लांट अपने आप आ जाते हैं वहाँ के लोगों के। बिंदी लगाने में एक्सपर्ट है वो लोग, और इतने लगाई अभी कि करीब करीब 5 लाख टन का उत्पादन कर दिया। हमारा 50,000 टन का उत्पादन है जिसमें 10 लाख 1 मिलियन फार्मर इन्वॉल्व है। 15,000 करोड़ रुपए का उत्पादन है। नेचुरल प्रोडक्ट हम बनाते हैं इंडिया में, लेकिन धीरे धीरे वो एक्सपोर्ट कम होने लग गया। हर आदमी भाव देखता है। करीब करीब ये $12-15 में जाता था, सिंथेटिक मेंथॉल आने लग गया $10 में। और सबसे बड़ा उत्पादक भी इंडिया है नेचुरल का, सबसे बड़ा कंज्यूमर भी इंडिया है, क्योंकि हम लोग इतने रिच हैं कि पान खा के थूक देते हैं, और इतना थूकते हैं कि मतलब उसमें सैंडलवुड भी डालते हैं। तो सारे नेचुरल प्रोडक्ट जो हम लोग पान मसाले में यूज़ करते थे उन सब में सिंथेटिक का आवागमन हो गया, और उसमें चाइना बुरी तरह से छा गया है, क्योंकि उनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना तगड़ा है। जैसे वान हुआ, ऐसी कंपनियां जो बीएसएफ के काउंटरफिट्स है, आन हुआ, एनएचयू, ये सब $70 to $100 बिलियन की कंपनियां हैं, और ये सब करीब करीब $10 में मेंथॉल दे रही है। अभी हमारा इंडियन पहले मरा फार्मर, बाद में बीच में मरे करीब करीब हज़ारों एमएसएमई है। आप अगर गाज़ियाबाद से लेकर मुरादाबाद, चंदौसी, संभल, अभी मैं वहाँ पे से जाके होके आ रहा हूँ, तो वहाँ पे करीब करीब यूनिटें सारा सिंथेटिक मेंथॉल मंगा रही है, और वो हाइब्रिड करके नेचुरल सिंथेटिक मिक्स करके यहाँ के लोगों को बेच रहे। तो ऐसे में सारे किसान लोग बुरी तरह से मर रहे हैं। और मेरे को लगता है ये आज 50,000 टन था, 40,000 टन हो गया इस साल, अगले साल शायद 20,000 टन भी नहीं रहे, और हम लोग चाइना से नेट इम्पोर्टर हो जाएंगे। तो ऐसे में जैसा आपने कई जनों ने बताया, हार्मोनाइज कोड नंबर ये एम्बिग्विटी है 3301 में जो क्लासिफिकेशन आता है वो दोनों का सेम है। मेंथॉल है 42 सारे जो पैरामीटर्स है इसका। मैं आईएसओ पैनल में भी हूँ, तो मुझे पता है कि दोनों का कोई हार्मोनाइज सिस्टम्स में डिस्टिंक्शन नहीं है। वो पहले बीएसएफ और जापान की कंपनियाँ, ताइवान की कंपनियाँ, अन्यथा जो सिमराइज जैसी बड़ी बड़ी जर्मन कंपनियाँ वो बनाती आई है। अब वो अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए सिंथेटिक पे ही हमेशा जोर दिया। उनके इधर इतने फार्मर नहीं है, तो हमेशा सिंथेटिक मेंथॉल बाहर से आया। लेकिन अभी चाइना जब से आया उसने भारत का कत्लेआम चालू कर दिया है। तो इसमें कुछ आपका सुझाव हो तो बताइए प्लीज़। धन्यवाद आपका। आप समझना ये चाह रहे हैं कि आपके लिए सोल्यूशन क्या है। देखिए इसमें क्या होता है, एंटी डंपिंग या काउंटर वेलिंग इन्वेस्टिगेशन में एक कॉन्सेप्ट होता है लाइक प्रोडक्ट का, कि जो सामान आप बना रहे हैं और जो इंपोर्ट हो रहा है वो समान नहीं हो, लाइक होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, लाइक होना चाहिए। ओके। अब यहाँ आपके केस में समस्या क्या है, देश में बन रहा है नेचुरल और जो इंपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है सिंथेटिक। यस। अब एक लीगल क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि क्या सिंथेटिक और नेचुरल लाइक प्रोडक्ट है या नहीं है। अभी मैं उसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं आपको एक छोटा सा नहीं, अभी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको एक ही मिनट जी, उससे 1.5 मिनट नहीं होगा। जैसे नेचुरल रहता है ना, उसमें बहुत सारी सेफ्टी रहती है, लेकिन वो टाइप की टेस्टिंग फैसिलिटी आज भी हमारा CSIR। नहीं, मैं तो आप ही का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लाइकनेस है वो कैसे पता है कि दो प्रोडक्ट लाइक हैं। अब ये एक ये पेन है और एक ये पेन है, करेक्ट, ये लाइक है या नहीं है। कोई कह सकता है कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये निब वाला पेन है, ये बॉल पॉइंट वाला लाइक नहीं है। करेक्ट। दूसरी साइड कह सकती है दोनों लाइक हैं क्योंकि दोनों लिखने के काम आते हैं, दोनों सब्सटीट्यूटेबल है, आप इससे लिखो या इससे लिखो सेम ही चीज़ लिखेगा, तो इसलिए लाइक प्रोडक्ट है। इस तरह से आपको केस बनाना पड़ेगा कि जो इंपोर्ट हो रहा है
और जो हम बनाते हैं, ऑल्दो उसका प्रोसेस डिफरेंट है, दोनों लाइक प्रोडक्ट हैं, सब्सटीट्यूटेबल प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि आप 25% इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप एसोसिएशन हैं, करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो विकास माथुर जी मालिक लोग बैठे हुए हैं, इनसे रिक्वेस्ट करिए कि सो मोटो इनिशिएट करें तो स्टैंडिंग का आपका रिक्वायरमेंट घट जाएगा। लेकिन तीसरा, उसके बाद आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इंजरी, आपको क्षति हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि एंटी डंपिंग की प्रक्रिया के लिए 3 चीज़ें प्रूव करनी होती हैं। पहला, डंपिंग हो रही है या नहीं हो रही है, दूसरा आपको क्षति हो रही है या नहीं हो रही है, और तीसरा आपकी क्षति डंपिंग के कारण हो रही है या नहीं। अगर आपकी क्षति किसी और कारण से हो रही है तो आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। तो अगर आप लाइक प्रोडक्ट को प्रूव कर देते हैं और आप अपनी क्षति के लिए डेटा देने के लिए राज़ी हैं, आपको जो है आराम से जो है DGTR रिलीफ जरूर प्रोवाइड करेगा। बस यही मेरे को जानना था। Thank you. Thank you, sir. I think we can take one more question from our online participant, Mr. Pranav Shah. I think he's me. Mr. Pranav Shah, you are still unaudible to us. Does anyone else want to take this chance from our online participants? Can I speak? Yes. Yeah. So I'm representing Suparna Chemicals, MSME and a special manufacturing company. We are recent beneficiaries of anti-dumping duty on 2 of our products, and I just wanted to thank the DGTR team and the Ministry of Finance for acknowledging this dumping and then taking the right steps to prevent it. Thank you. Can I speak? Yes, sir? Yes, please. Yeah, please. Hello? Yeah, please go ahead. Yeah. Thank you for all. Good evening. So my name is Naveen Reddy from Indian Rubber Glove Association. So we are suffering that some issues actually thing is now from the FTA countries, Trade Agreement countries. That is the main thing is the imported duty structure. So we are importing the raw material is the 70% duty and finished goods is the 0% duty. So these are the major concern about that our glove domestic industries are suffering a lot actually. So can we do the address on that this issue in that anti-dumping duty? That is the one concern. And the second point is that and the utility parts. And utility is that if especially is Malaysia and Thailand, they are well established since 50 years. We are the gloves industries is a budding stage because after Corona only we are starting that. And government also encouraging to set up that PPE kit development industry. But now it is we are in the small industry, MSME industry. We are not able to compete that is the Malaysian industries. But main thing is that we are mostly suffering is the 0% duty from the free trade agreement countries, Asian free trade agreements. So that is the one of the major issue. So many domestic industry watching to close the industries because we are not. This is unfair trade actually. So can we address that same issue in that anti-dumping duty? This is the open source. Actually, everybody knows that because this is the public domain actually in the raw material. And one more thing is that today is the raw material of the Malaysian countries, international rubber price is the $130. But in India is that $170. Okay, so that is a 30% is the difference in the raw material.
but we are not able to import from the international because of this is a 70% duty on the latex rubber. So this is the completely unfair actually. That is completely unfair to 0% duty on the finished goods. So that is the major concern about from the domestic industry, global domestic industry. And second point is that is no utility cost. Utilities is that the gas. It is a major thing. Utility is that fuel. In the Malaysia and Thailand, their gas cost is very less compared to our India. And even if you take the transport and chemicals and everything is the less cost in the Malaysia and Thailand. But finished goods import is a 0% duty. And the third point is that majorly thing is that so ancillary units. We are in the starting position. So we are very much depending on the ancillary units from the Malaysia and Thailand. Even if you buy that in a single part and all these things. So, but India has a very huge potential for the glove industry and medical side and medical devices. And we have the very good potential to technology upgradation and fabrication kind of things. So, if we give the support from the government, so through anti-dumping and safeguard, whatever it may be, so we at least next 5 years, we can make it as India has an export hub. Because of due to we have a lot of geopolitics, it is a positive kind of thing. So please address our issues. So how we'll produce that? We can go for the anti-dumping duty. We can because of data also is available because of 30% of the prices is compared to raw material in Malaysia and Thailand. Right, Mr. Reddy, we have understood your question. First you have to understand what is anti-dumping duty. Just because a product is coming cheap does not mean that it is getting dumped. We use it in a very loose manner where we say dump means it is coming cheap. It is a technical term where you compare the domestic price with the export price. So in case that product is sold at 100 rupees in Thailand or Malaysia and it is sold in India at 80 rupees, then it is dumping because the domestic price is higher than the export price. But if the domestic price is also 10 rupees and the export price is also 10 rupees, then it is not dumping. So if you are facing a challenge because of cheap prices, you have to be very clear this cheap is a relative term, how does that product fare at the rate at which it is being sold domestically. If there is a difference between the domestic price and the export price, yes, you have a remedy available, which is an anti-dumping application you have to file. However, in case you feel that the price, there is no difference between the domestic price and the export price, and it happens to be a country which is a non-market economy, then anti-dumping would not be the solution. Since it is coming under an FTA, so raising the custom duty is also not a solution. Your solution would then lie, you will have two different remedies available to you. You can request the government either for a minimum import price, which is MIP, or you could request the government to bring a QCO or a quality control order, and these are the two instruments which are available to you. Anti-dumping could also be available to you, provided you know what is the domestic price and the export price. I hope I have answered the question. One second. One thing. Hello. Sir, actually thing is that our manufacturing cost is very higher than the Malaysian prices. So we can go for the injury kind of things actually. No, injury has to be because of dumping. Because of raw material. No, because of utilities. Mr. Reddy, the injury has to be because of dumping. Injury cannot, if you are suffering injury because of your high raw material cost, then the solution is a basic customs duty, not an anti-dumping duty. But since it is coming under FTA, so BCD is not a solution which is available to you.
Thank you. Thank you for your. Thank you, sir. And I would encourage all the participants, if they have any further questions, to put it into the QR code available in front of you, and online participants can post their questions within the chat. Thank you. Now, I would like to invite Professor James Nedumbara, Head, Center for Trade and Investment Law, to provide his remarks. Good evening, everyone. Can you hear me? Yes, sir. Yes. Thank you. So, in fact, I'm really missing this particular function, and I can see a lot of raised hands. So, my feeling is that we should have this kind of a workshop again in the future. But having said that, let me just give a few closing remarks. And then, of course, I would like to thank all the people who attended this particular program as well. So our center is a center which is established by the Ministry of Commerce and Industry way back in 2016, and we have been helping the MSMEs also in relation to certain anti-dumping measures. So on this particular occasion, I would like to especially thank Mr. Siddharth Mahajan, DGTR, and also the previous additional secretary and the former additional secretary in previous DGTR, Mr. Anand Swarup. I can also see a number of leading practitioners from various law firms, several officials of the DGTR, past and present, and also a number of people from the MSME sector. So we have been having this discussion for a fairly long time that the MSMEs are actually the powerhouse of the Indian economy, that they constitute more than 30% of the GDP. And if you really want to unlock the potential of India, you have to really empower the MSMEs. So I couldn't attend the entire program because I had to be away for work. But I can see that a lot of people, MSMEs from various parts of India have actually joined, either physically or online. And the questions were extremely, very pertinent. Some of them were basic questions, but again, I think these are very important for the officials or the people who are familiar with this particular sector to clarify these questions. I should also mention that now we are actually entering a particular phase where trade remedies will again be more popular, and this is happening because of the global turmoil. The tariffs are actually going up again. There will be some kind of a circumvention in certain products. So our trade defense mechanisms will have to be extremely strong and watchful, and more importantly, very vigilant. So at this moment, we have to really support the industry, especially the MSME, either through this kind